गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका केमिकल फिज़िकल और केमिकल चेंज चल रहा था। आज आपका ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया, इसलिए मैं एक वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है फ्यू एक्टिविटी टू स्टडी केमिकल चेंज। हियर we will discuss, or we are going to discuss about the certain or few changes taking place during chemical reaction. As for example, first the activity 1, burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon in air, it is a chemical change. Now you will study this. As you know that magnesium is an element, and for this activity we have to perform for this change we have to perform an activity like this. First of all, we take a magnesium ribbon. We clean it by sandpaper, by rubbing the sandpaper on magnesium ribbon, and you will heat this magnesium ribbon on a gas burner. After some times, or upon heating, this magnesium ribbon burns with white flame. अब ये white flame के साथ जलेगा, and left out a powder like ash called magnesium oxide. Now, as you know that any metal or non-metal combines with oxygen to form their respective oxide. So magnesium react with atmospheric oxygen to form magnesium oxide, that is left behind like a powder, ash-like structure. Now you will do this activity by observing this diagram. This is your gas burner, and by tongs मतलब चिमटा के सहारे इस मैग्नीशियम रिबन को इस फ्लेम पर हीट किया गया. आफ्टर सम टाइम्स इट बर्न्स विथ वाइट लाइट के साथ ये बर्न कर रहा है, और जलने के साथ साथ ये जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर गिर रहा है, इसको पेट्री डिश में जमा किया गया. दिस पाउडर लाइक सब्सटेंस विच इज़ we received after the burning of this magnesium ribbon, that is called magnesium oxide. So the conversion of magnesium into magnesium oxide is a chemical change, and it is a permanent change, and new things magnesium oxide is formed. It means magnesium is converted into magnesium oxide, so it is a chemical change. Magnesium bonds to give magnesium oxide. Now the activity 2. In activity 2, mixing magnesium oxide with water. It means when this powder, जो पाउडर आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो व्हाट हैपेंस, और इट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज. तो इसमें होगा क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड.
magnesium hydroxide, the formation of magnesium hydroxide is also a chemical change. For this activity, we collect the magnesium oxide in a dish, plus we have to take a beaker containing water. Now this magnesium oxide is added in this water containing beaker. Now magnesium hydroxide is formed. How can we test? As you know that magnesium hydroxide is a base. For testing the given sample, we use a litmus paper. We have already studied in previous chapter acid-base salt. It turns red litmus into blue, so it is a base, magnesium hydroxide, which is a base, and that turns red litmus into blue, as litmus paper act as an indicator. So in this way we will see that it is also the formation of magnesium oxide to magnesium hydroxide with water. It is also a chemical change, as new substances is formed and this changes is permanent, so it is a chemical change. Now the third activity, reaction between copper sulfate solution and iron. As you know that copper sulfate is a salt. Copper sulfate is a salt. कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्ट है. इसको हम क्या करेंगे, एक बीकर में लीजिए वाटर डिजॉल्व करके, और हमने क्या बना लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दिस कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. अब इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है. अब हमें इसमें क्या करना है, ऐड सम आयरन नेल्स, यानी लोहे की कील को हम इसमें ऐड किए. द कलर ऑफ सॉल्यूशन is blue. After adding iron nail in copper sulfate solution and left it for some time, और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे. The color of copper sulfate turns sulfate turns blue to greenish due to formation of iron sulfate. Due to formation of this iron sulfate, and the iron sulfate which color is greenish. इसका रंग क्या है, हरा है. तो ये क्या हो जाएगा, हरा में कन्वर्ट हो गया. इसको आप ऐसे देखिए, इस एक्टिविटी को इस किताब में क्या कर रहा है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन, केमिकल चेंज है. हाँ, डिजॉल्व टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, नीला थोथा इसका नाम है, इन हाफ ए कप ऑफ वाटर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड.
दिस इज़ ए ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। यहाँ बीकर नहीं लेकर टेस्ट ट्यूब लिया गया। अब कहता है पुट एन आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व। इसमें आयरन नेल डाल दिया गया और ऑब्जर्व किया गया। आफ्टर सम टाइम्स द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन। अब यहाँ कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल गया और कॉपर अलग हो गया। हाँ, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन ग्रे। अब क्या हो गया? आयरन सल्फेट ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट आयरन पर हो गया। यहाँ ये इस प्रकार ये केमिकल चेंज है। क्यों? कि कन्वर्जन ऑफ कॉपर सल्फेट टू आयरन सल्फेट इज़ ए परमानेंट चेंज एंड it is new substance is formed here, so it is a chemical change. So we will observe that different changes taking place. Now the third activity, reaction between carbon dioxide and lime water. As you know that if we burn anything, we will find the carbon dioxide is produced. Carbon dioxide, if we burn any substance containing carbon, कोई भी सब्सटेंस को जलाएं, कार्बन को कोयला को जलाएंगे प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डालेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर ये क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? इनसॉल्युबल है और वाइट कलर का है, वाइट इन कलर। दिस इज़ वाई दैट द कलर ऑफ लाइम वाटर जो ट्रांसपेरेंट था अब क्या हो गया? वाइटिश कलर का हो गया, मिल्की हो गया। सो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की वन ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। सो इट इज़ ऑल्सो ए chemical change. For this activity you observe this diagram. Here lime water is, now lime water turns milky. यहाँ lime water नहीं, लाइम वाटर यहाँ लिया गया, इसमें लिया गया ये रिएक्शन कराया गया किसी कोई मेटल और एसिड के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड, बेकिंग सोडा प्लस विनेगर, इन सब चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं एसिड के साथ इनका रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में किया तो ये लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की हो गया, यानी ये वाइटिश कलर का हो गया। और ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है लाइम वाटर के साथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट एग्जांपल्स विच शोज दैट इट इज़ ए केमिकल चेंज। अब इसमें समरी आपको दिखा रहा है, इसका हम फ़ोटो खींच के भेज दे रहे हैं। और आपका फोटोसिंथेसिस, इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर गूगल मीट से पढ़ाई होगी तब। थैंक यू।